Good morning students. Today we will read lesson 10 of history. New empires and kingdoms. नए साम्राज्य और राज्य. In this lesson we will read about प्रशस्तिज and what they tell us. And समुद्रगुप्त प्रशस्तिज, Genelauses, Harshvardhana and the Harshcharita, the Palwas, Chalukya and Pulkeshian प्रशस्ति. यानी प्रशस्ति मीन्स बेटा जो किसी भी राजाओं या किसी भी इंसान की प्रशस्ति यानी प्रशंसा के ऊपर लिखी गई पुस्तक को प्रशस्तिज कहते हैं. और इस शासनकाल में बहुत सारे राजाओं की प्रशस्तिज लिखी कई कवियों ने. नाउ वी विल रीड डिटेल अबाउट दीज पॉइंट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. प्रशस्तिज एंड व्हाट दे टेल अस. Arvind was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. We know about Samudragupta from a long inscriptions inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Harisena, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था. आज एक प्ले करने जा रहा था. समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है. वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है. दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ. वाइल प्रशस्तिज वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स हु रीड अबाउट इन चैप्टर 9 सच एज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, they became far more important from the time of the Guptas. यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं. यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है. प्रशंसा होता है. प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि तुम अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया. Samudragupta's Prashasti. Let us see what Samudragupta's Prashasti tells us. The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. The Prashasti was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है. कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है. यहाँ तक कि उसे ईश्वर का दर्जा दिया गया है. प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं. यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है. सी दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रशस्ति. If you look at map 7, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashasti. Harisena described 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policy towards them. अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है. तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे. उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे. यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है. हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं. The rulers of Aryavarta, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of
समुद्रगुप्त एम्पायर। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथा हेयर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated, and he then allowed them to rule again. The inner circle of neighboring states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of Gana Sanghas, remember chapter 5, in the north west marked in purple on the map. They brought tribute, followed his orders, and attended his court. The rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kushans and Shakas, and the rulers of Sri Lanka, who submitted to him and offered daughters in marriage. इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। Genealogies. Most Prashastis also mention the ancestors of the rulers. This one mentions Samudragupta's great grandfather, father and mother. His mother Kumara Devi belonged to the Lichavi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraja, a title that Samudragupta also used. His great-grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as if the family gradually rose to importance. Arrange these titles in order of importance: Rajas, Maharaj, Adhiraja, Maharaja. Samudragupta in turn figures in the genealogies of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins. He led an expedition to western India where he overcame the last of the Shakas according to later belief. His court was full of learned people, including Kalidasa and poet, the Aryabhata, the astronomer, about whom you will read more in chapter 11. अधिकांश जेनोलॉजीज मीन्स वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी कि परदादा, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से क्या बनेगा? राजा, महाराज, अधिराज, फिर महाराज। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में आप अध्याय 11 में डिटेल से पढ़ेंगे।
then Harshvardhana and the Harshcharita. While we can learn about the Gupta rulers, we will read this part in part 2 of this lesson.